Hello class, welcome back to your maths class. So kids, from the last few videos we were doing questions based on fractions, and yes, today also we'll do fractions. Now see, as you know, your annual exams are approaching, so start studying, and don't forget to solve all the model paper and all your, you see, the test paper that has been given in your book. Fine, so let us start our today's class. Fine, so from we are doing the word problems only. ठीक है, कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैम आपको करा रहे हैं. रीजन क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स कराने के? वो ये है कि जब आप, क्योंकि 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैम आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहे हैं. ओके, नाउ कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो शेडिंग अ फिगर वाला देखा था, बट अभी हम वी विल स्टार्ट विद फ्रैक्शंस वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है ना? सो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. Is that visible? No, it is not visible. See, now the question is, Rita has 28 marbles. Fine, so Rita has 28 marble. 4 of the marbles are, 4 of the marbles are, okay, so the question is not visible, I guess. Let me write it down here. Now it will be visible if I will write from here. So Rita has 28 marbles. 4 of the marbles are blue in color. 3 are pink. 8 are black, and rest of the marbles are white in color. White in color. Find out the fraction of each marble. इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो. सो रीता हैज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 28 मार्बल थे, जिसमें से कि क्या हुआ, 28 मार्बल्स में से 4 ब्लू थे, 3 पिंक थे, 8 ब्लैक थे, और जो बचे हुए मार्बल थे वो वाइट थे. तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है हर एक तरह के मार्बल्स का. डू दिस क्वेश्चन, कम ऑन, करो ये क्वेश्चन. Completed?
then do the question. Find out the number of white marble. Completed. Okay, let us do. So Rita has 28 marbles. ठीक है? So what will be the first statement? First statement will be total number of marbles, right? Total number of marble, then number of blue marble. ठीक है, number of blue marble, then number of pink marble. Number of black marble. And number of white marbles. Fine. Now write down the number, find out the white marble, and after doing that, find out their fractions. इतना करो पहले. Okay. So let us write the number and the fractions as well. See, total number of marbles कितने हैं? Total number of marble कितने हैं? 28. ठीक है? So here you will write 28. Number of blue marbles, they are 4 in number. Then 3 pink marbles. After that, black marbles are 8. And here we have to find the white marble. Number of white marble we have to find.
हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, हाँ कैसे हम पता करने वाले हैं व्हाइट मार्बल के बारे में, देखो। सो वी विल राइट 28 माइनस इन सारे नंबर्स का सम, 4 प्लस 3 प्लस 8, 28 minus 4 plus 3 plus 8, what you will get? 28 minus 4 plus 3 7 और 8 और 7 15, 28 minus 15 13, okay. Now let us find out the fractions, चलो fractions करें, okay. Fine, I'll start with blue one. So fraction of blue marble fraction of pink marble fraction of black marble and fraction of white marble. चलो फाइंड आउट करते हैं ब्लू मार्बल, पिंक मार्बल, ब्लैक मार्बल एंड व्हाइट मार्बल के कितने कितने फ्रैक्शंस हुए। ना ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल नंबर कितना था 4, ठीक है, ब्लू मार्बल का नंबर था 4, टोटल ब्लू मार्बल कितने थे 28, पिंक मार्बल 3, टोटल कितने थे 28, ब्लैक मार्बल 8, टोटल कितने थे 28, व्हाइट मार्बल कितने थे, यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेट किया था 13, है ना, सो 13 अपॉन 28, फाइन। सो हियर वी हैव डन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, नोट डाउन, note it down, come on. कर लिया, okay, now ma'am is going to erase the board. चलो let us do the next question. Question number 2. In a school, 45 students opted for third
this. 5 students opted for 5 students opted for French, 11 opted for German, 3 opted for 3 opted for Sanskrit, and rest of the students opted for Chinese. Find out the fraction of languages. Find out the fraction of each languages of by student. Each language student. 5. जैसे कि जब आप क्लास 6 में जाओगे तो आप हिंदी और इंग्लिश के साथ एक लैंग्वेज हमारे स्कूल में आप और पढ़ोगे, दैट इज संस्कृत। तो एक स्कूल में क्या हुआ, जब ये थर्ड लैंग्वेज चूज करना था तो वहाँ पे ऑप्शंस थे, तो बच्चों ने फ्रेंच चूज किया, जर्मन चूज किया, चाइनीज चूज किया, ऐसे करके अलग अलग से लैंग्वेजेस बच्चों ने चूज किए। तो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक लैंग्वेज का फ्रैक्शन बताना है। चलो फाइंड इट आउट। Completed? टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितनी है, फिर कितने स्टूडेंट ने फ्रेंच ऑप्ट किया, फिर कितने ने जर्मन किया, संस्कृत किया और चाइनीज किया, वो दिया हुआ है। आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अरेंज, पहले राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड देन फाइंड आउट द फ्रैक्शंस।
So let us do total number of students. Yeah, let us keep it simple. Total student. Total student is 45. Now, number of students opted French 5. ठीक है, number of students opted German 5. Number of students opted Sanskrit 5. Number of students opted Chinese. फाइंड आउट द नंबर्स. चाइनीज कितने बच्चों ने ऑप्ट किया था, नंबर फाइंड आउट करिए. Completed. ओके, तो जर्मन कितने ने ऑप्ट किया था? 11. संस्कृत 3. अब पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड चाइनीज. सो कैसे करेंगे, वही तरीका. 45 माइनस 5 प्लस 11 प्लस 3. चलो बताओ कितने चाइनीज ऑप्ट किए थे? 45 माइनस 19. हाँ, कितना आया? 26. 26 बच्चों ने चाइनीज ऑप्ट किया. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट द फ्रैक्शन. चलो अभी फ्रैक्शन फाइंड आउट करो.
Okay. Fraction of students opted French equals to, ठीक है, then fraction of student opted German equals to fraction of students opted Sanskrit equals to fraction of students opted Chinese equals to, okay, फ्रेंच, संस्कृत, जर्मन, चाइनीज। अब क्या करना, अब इनके फ्रैक्शंस हमने लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितने कितने फ्रैक्शंस हैं इन लोगों के, तो फ्रैक्शन अब देखो फ्रेंच कितने बच्चों ने लिया था, 5, टोटल कितने थे 45, तो क्या हो जाएगा 5/45। नेक्स्ट इज व्हाट, जर्मन, जर्मन कितने बच्चों ने लिया था 11, अब टोटल कितने थे 45, तो क्या फ्रैक्शन हो जाएगा 11/45, ठीक है। उसी तरह संस्कृत कितने बच्चों ने लिया था 3/45, चाइनीज कितने ने लिया था 26, तो क्या हो जाएगा 26/45, ठीक है। तो इस तरह से क्या टोटल स्टूडेंट जितने हैं वो हम कहाँ डालते हैं, वो हम डालते हैं डिनोमिनेटर में। ना फ्रेंच कितनों ने लिया था 5/45, जर्मन कितने हुए 11/45, संस्कृत 3/45 और चाइनीज 26/45। So this question will do like this only, ठीक है। नोट इट डाउन, नोट डाउन करो, पहले फटाक से भी नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। Completed? Okay. Okay class, so today we have done up to here, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अभी what happened, from tomorrow I will try to start a new chapter। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी टाइम या मेजरमेंट के कोई चैप्टर हम रिवाइज करें, ठीक है। अभी तक हमने 6 चैप्टर्स के रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। Now don't forget to do all this work in your copy, fine। So now ma'am will meet you in the next class with I guess new chapter। Chalo, bye।